Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 11th students. In previous video lecture, you have seen the important points related to phylum Coelenterata. This is all about matter of chapter 4, Animal Kingdom. In first part, you have seen what are the meaning of Coelenterata and other name of Coelenterata is Cnidaria. Then I have also explained regarding the reasons behind the fact why Coelenterata called Cnidaria. If you missed the video lecture, the videos are available in the channel links Biofilling Concept. So be with the video lecture till the end and you will find another features, the basic important feature that I forgot to mention in previous video lecture. This will be described in this video lecture. This is part 2 video of Coelenterata. So let's back in online class and see whatever other features of phylum Coelenterata. In part 1 you have studied the different kinds of features that may assign the Coelenterata as well as the Cnidaria. मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, कल के क्लास में आपको बताया था कि फाइलम Coelenterata को Coelenterata क्यों बोलते हैं, Cnidaria क्यों बोलते हैं. इसका वीडियो आपको चैनल्स पे मिल गया होगा, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं. Now this is part 2 lecture of phylum Coelenterata. It means in this lecture we are going to describe the other features of phylum Coelenterata. Other feature means some basic features which never explain the meaning of Coelenterata and Cnidaria. In first lecture you have studied why Coelenterata so called and Cnidaria so called, because of having nidoblast or nidocele, very special kinds of stinging cell. That's why they are called Cnidaria. उसके पास एक स्पेशल सेल होता है जिससे वो किसी को डंक मारते हैं. That's why they called Cnidaria. And there are having a cavity at the mid of body. There are having a cavity. That cavity is known as gastrovascular cavity. स्पंज में भी कैविटी होती है, उसको बोलते हैं स्पंजोसील. इसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील. लेकिन इसकी कैविटी को क्या बोलेंगे हम लोग, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. स्पंज के बॉडी पे छोटे छोटे होल्स थे, इसके बॉडी पे कोई होल्स नहीं होगा. अब आते हैं अदर फीचर्स ऑफ Coelenterata. नेक्स्ट फीचर्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ Coelenterata. Phylum Coelenterata has some common features. Point 1, they all are marine. In sponges you have studied some of sponges are actually the fresh water like Spongilla, and most of sponges are the marine water. In this case most of Coelentrates are also marine, but some of Coelentrates are having in your normal pond, in normal river. It means some are, mostly, rarely they all are actually marine. Rarely they are actually the fresh water. Okay. So marine, it means mostly marine and rarely fresh water. Fresh water means pond, puddle, lake, river, etc. फ्रेश वाटर का एग्जांपल लिख लो. फ्रेश वाटर Coelentrates का कंपटीशन में पूछता है हाइड्रा एग्जाम में आता. देखो मैं तुमको 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, ताकि वहां जाकर के सारी चीजें क्लियर हो जाए, वहां जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो द फर्स्ट, दे ऑल आर marine except some like hydra are fresh water Coelentrates. Second, they all are diploblastic Coelentrates are those Coelentrates, or diploblastic animals are those animals that are having only ectoderm and mesoderm. स्टार्टिंग वीडियो आपको इसका मिला होगा, वहां से आप पढ़े होंगे. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें एम्ब्रियो के बाद जो लेयर बनते हैं वो दो ही बनेंगे. ठीक है, एक आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म और एक इनर लेयर जिसको एंडोडर्म. ठीक है, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है. हमारा जब एम्ब्रियो बनता है तो 3 लेयर बन जाते हैं,
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में एक मीजोडर्म बनता है। इसके बीच में मीजोहिल होता है, ठीक है, इसका बीच में कोई और पार्ट नहीं होता है, इसमें क्या होता है मीजोहिल, लेकिन वो स्पेशल लेयर नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। डाई मीन्स साइंस में पढ़े होगे, डाई मीन्स क्या होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3, डाई मीन्स होता है 2, ठीक है। तो डाई डिप्लोब्लास्टिक मीन्स हैविंग द 2 लेयर। ये स्पेशल फीचर्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन का मैंने टाइप बताया था। व्हेन देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन्स आर फाउंड फॉर डाइजेशन, देयर विल बी द intracellular digestion. But in this way, that is in Coelenterata, special organs, they all are having the tissue level of body organization, so they perform the extracellular digestion. पोरीफेरंस में सेलुलर लेवल पे डाइजेशन होता था, जिसको इंट्रासेलुलर। जब न्यूट्रिशन के सारे इवेंट जो 10th में पढ़े होंगे, उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, पांचों स्टेप एक ही सेल में कंप्लीट हो जाए तो बोलेंगे इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल। अगर सेल के बाहर कहीं इंजेक्शन हो रहा है और न्यूट्रिशन किसी और पार्ट में हो रहा है और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कहीं और हो रहा है तो बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों के बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। सो सिलेंट्रेट्स की बॉडी में कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बातें सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक मैरीन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी, इसमें सिमेट्री कैसा होगा? रेडियल। बॉडी इसमें कैसी सिमेट्री होगी? रेडियल। पोरीफेरम कैसा था? एसिमेट्रिकल था। इसमें रेडियल सिमेट्री, मतलब इसमें टॉप से देखोगे तो इसके बॉडी में क्या होगा? सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, रेडियल सिमेट्री होगा। टिश्यू लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप फाइलम पढ़ते जाओगे आपको पहले सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, फिर टिश्यू लेवल मिलेगा, फिर ऑर्गन लेवल मिल जाएगा। इसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं काम करने के लिए, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। देयर आर हैविंग वेरी स्पेशल टिश्यूज दैट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट लाइफ फिनोमिनन। सो द सिलेंट्रेट्स है टिश्यूज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में कैसा था? ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग लिखते जाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें और इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये 5 पॉइंट्स पहले लिख लो, फिर आगे हम बता रहे हैं। हो जाए तो बता देना। डन हो गया ना? सेंटर में कैविटी अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या लिखेंगे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एट सेंटर, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, 7 पॉइंट, लिसन। सम ऑफ सिलेंट्रेट्स कैन मूव प्लेस टू प्लेस and some of the cilintrates cannot move place to place. It means some are motile and some are sessile, some are non-motile and some are motile. बातें समझो। Some cilintrates are motile. कुछ सिलेंट्रेट्स मोटाइल होते हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम लोग मेड्यूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड मेड्यूसा। ध्यान से सुनो, एक मैं फंडा, एक ट्रिक दे रहा हूं, ये हमारे तुम्हारे सीक्रेट की बात है। मोटाइल आएगा, मेड्यूसा आ जाएगा, ठीक है। मोटाइल एम से पढ़ते हैं और एम से मेड्यूसा भी पढ़ेंगे, तो ये बातें भूलना नहीं। कौन सा फेज सिलेंट्रेट्स का मोटाइल होता है तो बोलेंगे मेड्यूसा फेज मोटाइल होता है। एग्जाम में आएगा विच फेज ऑफ सिलेंट्रेट्स आर मोटाइल, सीधे आंख बंद करके लिखेंगे एम फॉर क्या बताए थे सर? एम फॉर बताए थे सर मोटाइल। बातें क्लियर हो गई? कुछ फेज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेट्स होते हैं
जो नॉन मोटाइल होंगे, यानी एक जगह फिक्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। पॉइंट 8 लिख लो कॉपी में, सम आर सेसाइल, कुछ सेसाइल होंगे, कुछ मूव नहीं कर पाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, उसको सेसाइल बोलते हैं, या तुम्हारे हमारे लैंग्वेज में इसको नॉन मोटाइल भी बोलते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। इसको सिलेंट्रेट, इस टाइप के सिलेंट्रेट्स को हम लोग पॉलिप बोलते हैं, दिस कॉल्ड पॉलिप। बातें क्लियर हो गई ना? पॉलिप। अब सीधे हम पॉलिप और मेड्यूसा पढ़ेंगे। जैसे ही मैं मेड्यूसा पढ़ूंगा, तुम लोग तुरंत दिमाग में एक मेंटेलिटी बना देना, मोटाइल ही होगा, यानी ये मूव कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही मैं पॉलिप बोलूंगा, तुरंत ही प्रेडिक्ट कर लेना कि ये मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा। ऑरेलिया, ऑरेलिया क्या है? मेड्यूसा है। ऑरेलिया को हम लोग जेली फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली फिश। जेली फिश फिश नहीं होता है। फिशेज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर प्लेस्ड इन पाइसीज, सुपर क्लास पाइसीज, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्रैफोस्टोमेटा, सुपर क्लास पाइसीज। तो वो पाइसीज के मेंबर को हम लोग फिश बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसको हम अनफॉर्चुनेटली फिश टर्म बोल देते हैं। जैसे किंगडम मोलस्का का एक मेंबर है ऑक्टोपस, उसको डेविल फिश बोलते हैं। ऐसे ही ऑरेलिया को हम लोग जेली फिश बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश? तो जेली फिश इज नॉट अ ट्रू फिश। फिश कौन होगा? ऐसे एनिमल जो सुपर क्लास पाइसीज में प्लेस होंगे, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का मेंबर होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा, ऑरेलिया। तो अगर दिमाग में आ गया ऑरेलिया, तो टेल मी ऑरेलिया इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, हमको बताना है। ऑरेलिया मूव कर पाएगा कि नहीं मूव करेगा? मोटाइल होगा। जेली फिश, जेली फिश जब नेट पे सर्च करोगे जेली फिश, तो तुमको मिलेगा कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो जेली फिश है, ऑरेलिया, ठीक है। इससे ब्यूटीफुल नहीं, ये बायोलुमिनेसेंस भी होता है, मतलब अंधेरी रात में अंधेरे कमरे में ये ग्लो भी करेगा, ठीक है। लेकिन वाटर एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 11, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप। अब कुछ पॉलिप के एग्जाम्पल लिख लो, हाइड्रा एंड एडेम्सिया, हाइड्रा एंड एडेम्सिया, ठीक है। ये दोनों क्या है? पॉलिप है। तो दिमाग में आ जाए, जैसे मैं बोलूं हाइड्रा, तो हाइड्रा मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता, एक जगह पे चिपका रहेगा। एडेम्सिया मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, एक जगह पे चिपका रहेगा, पॉलिप है, ठीक है। एडेम्सिया को सी एनिमोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी एनिमोन, सी एनिमोन। नोट कर लिया कॉपी में? लिसन, तो हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ सिलेंट्रेट्स आर मोटाइल, एग्जाम्पल ऑरेलिया और जेलीफिश। सम ऑफ सिलेंट्रेट्स आर नॉन मोटाइल, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिप। बट some of very special cilintrates in which in the single life span few stage are motile and few other stage are non motile। बातें क्लियर हो गई ना? मैं अभी जो बोला हूं उसको दिमाग में उठा लिया ना? कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके लाइफ स्पेन में एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही लाइफ स्पेन है, कुछ स्टेज सेसाइल होगा, कुछ स्टेज मोटाइल होगा। क्लियर है ना? चलो उसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 12, इन सम सिलेंट्रेट few stages are polyp and other few stages are
medusa. Medusa form. It means few stages are polyp. It means few stages are non-motile and other few stages are medusa. Let I take it in frame. इसको मैंने फ्रेम में ले लिया, अब दिख रहा होगा सब सारा पॉइंट, ठीक है। कुछ स्टेज जो है मेडुसा और कुछ स्टेज पॉलिप होते हैं। इट मींस कुछ स्टेज मोटाइल होंगे, कुछ स्टेज नॉन मोटाइल होंगे। तो उसके बारे में भी जानते हैं। कौन सा ऐसा भाई शूरवीर है जिसके एक ही स्टेज में मोटाइल भी है और सेसाइल भी है, उसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लो कॉपी में। एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया, OBELIA, ओबेलिया। और हो जाए तो बताना। ओबेलिया के लाइफ स्टेज में सेसाइल मोटाइल दोनों स्टेज आते हैं। हो जाए तो बताना। हो गया? लिसन, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ओबेलिया कैसे अपने स्टेजेस में मोटाइल और कैसे अपने स्टेजेस में सेसाइल फॉर्म डेवलप करता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो कॉपी में, ओबेलिया शो बोथ मोटाइल and non-motile. It means Obelia show both polyp and medusa form through very special phenomenon called as metagenesis or polyp. क्या लिखना है? Obelia show both polyp and medusa. Obelia show both polyp and medusa through special phenomenon called metagenesis, or it is sometimes known as polymorphism. It is sometimes known as polymorphism. Metagenesis shown in Obelia, that is known as polymorphism. ये नोट कर लो तो बताओ।